Good morning, dear students. Chapter number 6, Work, Energy and Power, Standard 11 Science. In previous lecture, we can discuss a different two types of collision and inelastic collision in one dimension. Now today, we have discussed elastic collision in two dimension. Elastic collision in two dimension. Suppose mass of first object is m1 and moves with velocity v1i and first object collides with second object who is rest position, means velocity of second object before collides v2i is equals to 0. After collides, first object moving in first quadrant and second object moving in fourth quadrant with velocity v1f and v2f. Here angle is θ1 and θ2. So component of linear momentum of first object is m1 v1f cos θ1, m1 v1f sin θ1, and for second object m2 v2f cos θ2 minus m2 v2f sin θ2. According to law of conservation of kinetic energy, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की, इलास्टिक कोलिजन है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई होगा. सो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलाइड्स इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आफ्टर कोलिजन. बिफोर कोलिजन मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज हाफ m1 v1i square. Second object is rest position, means velocity 0, kinetic energy 0. For second object m2 v1 1 by 2 m1 v1f square plus 1 by 2 m2 v2f square. अब हम x कंपोनेंट की बात करें. फॉर x कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन x कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज m1 v1i. दोनों के x कंपोनेंट का एडिशन करो तो m1 v1f cos θ1 प्लस m2 v2f cos θ2, m1 v1f cos θ1 प्लस m2 v2f cos θ2. For y component before collision linear momentum becomes 0 and after collision m1 v1f sin θ1 minus m2 v2f sin θ2. Elastic collision. Now next is elastic collision in one dimension. Suppose first object moves with velocity v1i and collides with another object, and after collision velocity of two objects are v1f and v2f. ये आफ्टर कोलिजन के लिए, ये बिफोर कोलिजन के लिए. So according to law of conservation of kinetic energy, total kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after collision. So 1 by 2 m1 v1i square plus 0 is equal to 1 by 2 m1 v1f square plus 1 by 2 m2 v2f square. तीनों में से हम हाफ हाफ कैंसिल करें तो m1 v1i स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1f स्क्वायर प्लस m2 v2f स्क्वायर. ये थियरी ध्यान रखना क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस ज्यादा है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम अप्लाई करें तो बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज m1 v1i, फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट 0, आफ्टर कोलिजन m1 v1f प्लस m2 v2f. m1 v1i इसको इस साइड ले जाओ और m1 कॉमन निकालो तो m1 कॉमन v1i माइनस v1f इज इक्वल टू m2 v2f. अब ये फॉर्मूला में से हम m1 कॉमन निकालें, इसको इस साइड ले जाओ तो v1i स्क्वायर माइनस v1f स्क्वायर. इसके दो पार्ट होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई. तो m1 v1i माइनस v1f
इंटू v1i प्लस v1f इक्वल्स टू m2v2f स्क्वायर। ये दोनों का रेशियो ले ले हम, तो m1m1 कट, v1i माइनस v1f कट, तो फॉर्मूला आपको मिलेगा, इस साइड m2 कट हो जाएगा, v2f कट हो जाएगा, तो v1i प्लस v1f इज इक्वल्स टू v2f। हमको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। वी कैन फाइंड v1f एंड v2f आफ्टर कोलिजन, दोनों की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो v1i प्लस v1f इज इक्वल्स टू v2f। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 4, ये जो v2f है, उसकी वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, तो राइट साइड में होगा m1 v1i इज इक्वल्स टू m1 v1f प्लस m2। अब v2f की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो v2f की वैल्यू यहां पर आएगी v1i प्लस v1f, ब्रैकेट ओपन करो, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, m1 v1i इज इक्वल टू m1 v1f प्लस m2 v1i प्लस m2 v1f। इसको इस साइड ले जाओ, m1 माइनस m2 v1i लेफ्ट साइड में ले जाओ, m1 माइनस m2 v1i इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v1f। सो v1f इज इक्वल टू m1 माइनस m2 divided by m1 plus m2 into v1i. Now this formula v1f putting in equation number 4. So left hand side is v2f is equals to v1i plus v1f की जगह m1 minus m2 by m1 plus m2 into v1i. v1i कॉमन, LCM ले लो, तो m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 प्लस m2 माइनस m2 कैंसिल हो जाएगा, m1 m1 2m1। सो v2f इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1i। सो दिस इक्वेशन फॉर वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब स्पेशल केसेस की हम बात करें, तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, v1f इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1i, एंड फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट v2f इज इक्वल्स टू 2m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू v1i। नाउ वी कैन डिस्कस अ स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस, इफ m1 ग्रेटर देन m2, ये रियल फिजिक्स है, इसमें ध्यान रखना, ये ट्रक है एंड मास ऑफ ट्रक इज m1 एंड मास ऑफ बाइसिकल m2। बाइसिकल का मास कितना होगा, तो सपोज 10 kg और इसका 2000 kg, तो 2000 kg इज वेरी ग्रेटर देन 10 kg, तो हम m2 को नेग्लेक्ट करेंगे। m2 इज नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू m1। अभी आप सोचो कि अगर साइकिल रेस्ट पोजीशन में होता और ट्रक उसके साथ कोलिजन होता है, यानी एक्सीडेंट होगा, तो आफ्टर एक्सीडेंट क्या होगा, बाइसिकल ट्रक से डबल की स्पीड के साथ वो दूर जाएगा, बट ट्रक की वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्रक अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसके साथ कोलाइड्स होगा, तो बाइसिकल वो 80 की स्पीड के साथ दूर चली जाएगी। सो m2 को निग्लेक्ट करो, यही यहां पर प्रूव होगा, m2 को निग्लेक्ट करो, m1 m1 कट, सो v1f इज इक्वल टू v1i। इन दिस केस m2 निग्लेक्ट, m1 m1 कट, सो ट्वाइस v1i। मीन्स सेकेंड नंबर का ऑब्जेक्ट कौन सा है, बाइसिकल। द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू डबल देन वेलोसिटी ऑफ ट्रक बिफोर कोलिजन। और इसका मीनिंग क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू सेम एज वेलोसिटी ऑफ ट्रक बिफोर कोलिजन। मीन्स ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सेकेंड केस अब हम उल्टा कर देते हैं, ट्रक को रेस्ट पोजीशन में रखें और बाइसिकल ट्रक के साथ कोलिजन हो रहा है,
अगर ट्रक रेस्ट पोजीशन में हो और पीछे से बाइसिकल उसके साथ आए और एक्सीडेंट हो जाए तो ट्रक वो वही का वही रहेगा रेस्ट पोजीशन में, लेकिन बाइसिकल जितनी स्पीड के साथ आएगी सेम स्पीड के साथ वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसमें हम M1 को निग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले में फर्स्ट केस में बाइसिकल सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट था, यहां पर बाइसिकल फर्स्ट नंबर का ऑब्जेक्ट है, तो M1 इज निग्लेक्ट। M1 को निग्लेक्ट करो तो V1F इज इक्वल टू माइनस V1I एंड V2F नियरली इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू सेम एज वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल बिफोर कोलिजन बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। एंड लास्ट केस, इफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स रिमेन सेम, अगर ट्रक के साथ कोलिजन हो रहा है तो होगा क्या? ये ट्रक बिफोर कोलिजन सेकंड नंबर का ट्रक रेस्ट पोजीशन में है, ये ट्रक इसके साथ कोलाइड्स होगा तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ट्रक इन रेस्ट कंडीशन और सेकंड जो ट्रक है वो टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, और सेकंड नंबर का ट्रक मोशन में चला जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू V2, तो ये 0 हो जाएगा, मीन्स V1F इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे M2 की जगह M1 लिखो तो V2F इक्वल टू V1I, मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ट्रक आफ्टर कोलिजन is equal to velocity of first truck before collision, and the velocity of first truck after collides remains 0, यानी रेस्ट कंडीशन। तो ये इंपॉर्टेंट थियरी, ये पूरा कैलकुलेशन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, ये डायरेक्ट इक्वेशन टेक्स्ट बुक में है V1F एंड V2F, बट वो V1F V2F की फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रही है वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। टेक्स्ट बुक में ये सारे सम सारे स्टेप्स नहीं है।